गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपका एग्जाम कब है इसका? अब साइंस का कल है। कल गुड है। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। Okay, so let's start a very quick revision of this chapter क्योंकि काफी दिन हो गए हमें ये कर कर। ठीक है, two objects of different masses falling freely near the surface of moon would have same velocity at any instant, have different acceleration, experience forces of same magnitude, undergo a change in their inertia. ठीक है, एक एक करके कर। पहले वाला बताइए, will they have the same velocity at any given instant? यस सर। ठीक है, so falling two objects falling, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये एक ऑब्जेक्ट है बी, ये ग्राउंड है, मून है। ठीक है, मून को सीधा इसलिए बनाया है कि नियर द सरफेस है, राइट, तो इट विल लुक लाइक फ्लैट। तो अब ये गिर रहा है, ये टी एट इक्वल टू 0 है, ये टी एट 0 है, दोनों फ्रीली गिरने शुरू हुए, राइट। सो एट टी इज इक्वल टू लेट्स से टी सेकेंड, इसकी वेलोसिटी और इसकी सेम होगी, यस राइट, सेम होगी। यस सर। विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन? नो सर। नो, है ना। एक प्लेनेट पे है, नियर द सरफेस ऑफ द प्लेनेट है, तो जी की वैल्यू सेम होती है, हमको पता है। एक्सपीरियंस फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, फोर्स सेम होगी। फोर्स क्या होती है? एम इंटू जी। ठीक है, जी इज कांस्टेंट बट मास इज नॉट। इस बॉडी का मास अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, राइट। तो ये भी नो है। Undergo a change in their inertia. Inertia is what? Mass. Tendency of resist to change. Yes, the tendency to resist change is called inertia. And what is inertia measured as? Mass. Okay, so undergo a change in their inertia means undergo a change in their mass. Obviously not, right? Mass क्यों बदले? Yes sir. Okay, तो ये सब no है। The value of acceleration due to gravity is same on equator and pole. True, false? False. False. We know that small g is not a universal constant. Okay, we know that it changes from place to place. वो equator और pole पे अलग होता है. Is least on poles. True, false? False. False. It is highest on poles. Okay, not least. So least is wrong. It's Yes. least on equator. True. Okay, increases from pole to equator. Yes, true. True. पोल पे ज्यादा होती है, इक्वेटर पे कम होती है, तो कैन नॉट इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। Pole to फॉल्स। Okay, the gravitational force between two objects is F. If masses of both the objects are halved without changing distance between them, then the gravitational force will become F upon 4. F upon 4, right? Because force is equal to G m1 m2 by r square, right? Now, what have we done? We have made it the new force, force dash बोल देते हैं, is equal to G m1 by 2 into m2 by r square. So, which is G m1 m2 by r square. Okay. 1 upon 4.
This is the correct answer. A boy is whirling a stone tied with a string in a horizontal circular path. ठीक है, तो एक there is this child and he is whirling this stone like this. Okay, if the string breaks, the stone will continue to move in a circular path. False. False. Why would it not continue to move in a circular path? So centripetal force अब बंद हो जाएगा provide करना. हाँ. What was providing the centripetal force? The tension. The circular motion. नहीं, the tension in the string provided centripetal force. ओके, तो स्ट्रिंग टूट गया, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गया, इसलिए वो सर्कुलर पाथ पे नहीं चल सकता. विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. False. फॉल्स. False. ये तो हमें पता ही है, ऐसा तो होगा ही नहीं, हमारी तरफ क्यों आएगा, राइट? विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियली टू द सर्कुलर पाथ. So true. True. ठीक है, तो अगर ऐसे वो घूम रहा था, यहाँ पे वो स्ट्रिंग टूटा, तो वो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी इस पाथ पे चला जाएगा. will move along a straight line perpendicular to the circular path away from the boy. Obviously अगर ये true है तो ये false ही है, right? But sometimes only this part is asked. Okay, what it is saying is कि ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स थी यहाँ पे, अब ये टूट गया तो ये फोर्स तो बंद चली गई, तो इसको ऐसे चला जाना चाहिए, राइट? इस तरह से बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं. इसमें क्या गलती है इस आर्ग्यूमेंट? क्या गलती है इस आर्ग्यूमेंट में? ये फोर्स चली गई लेकिन कोई और फोर्स तो है ही नहीं ना. जब कोई फोर्स नहीं होती तो हमें क्या फर्स्ट लॉ क्या बताता है न्यूटन का, कि द बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विद इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. हाँ, ओके, तो वो ऐसे ही जाएगा बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, ऐसे नहीं जा सकता, चेंज क्यों करेगा वो अपना पाथ बिना फोर्स, राइट? सो दिस इज आल्सो फॉल्स. An object is put one by one in 3 liquids having, oh, ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं. ओके, ये इस बार सिलेबस में नहीं है हमारे. If the relation F is equal to G mm by D square, okay, ये प्रिंटिंग ऐसे है, but let's put it properly. Okay, the quantity G, it is asking about G, depends on the value of small g at place. False. It's a universal constant. Is used only when the earth is one of the 2 masses. False. ये तो कोई भी 2 बॉडीज में यूज होगा. ग्रेटेस्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. Again false, because universal constant है. Last one is true. True. Okay, see, we can do this really fast. मैं एक एक इसलिए कर रहा हूँ कि हम उसके रीजन को समझें. ठीक है, चलिए. Yes, sir. Question 7. Law of gravitation gives the gravitational force between the earth and a point mass only. The earth and sun only, any 2 bodies having some mass. ओके, हमें केवल मासेस चाहिए. ये ट्रू. ओके, चार्ज से इसका कोई मतलब नहीं है.
तो ये दिस इज फॉल्स. The value of quantity g is the in the law of gravitation depends on the mass of earth, depends on the radius of earth. सभी untrue. Independent. किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, is independent. Right? This is true. Yes, sir. These are very simple questions. Two particles are placed at some distance. If the mass of each of two particles is doubled, keeping the distance between them unchanged, the value of gravitational force between them will be 4 times. 4 times. We just did a similar question. It is 4 times. The atmosphere is held to the earth by gravity. gravity. Okay, this is an easy answer because हम gravitation का chapter कर रहे हैं, right? लेकिन otherwise also it's not difficult to know that atmosphere क्यों है अर्थ पे, क्योंकि air को gravitational force उस पे भी apply हो रही है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी हो रहा है, right? इसीलिए वो पूरी की पूरी air collapse नहीं हो रही है, right? क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग तो मेंटेन होता है, ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से होता है. चलिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट masses separated by a unit distance is called the force of attraction. Acceleration due to gravity. द फोर्स, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि ये फोर्स है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक्सेलरेशन है, फोर्स को एक्सेलरेशन तो नहीं बोलेंगे, ठीक है. बिटवीन टू यूनिट masses separated by a unit distance is called फील्ड भी नहीं है, ग्रेविटेशन फील्ड, फील्ड भी नहीं है, सर फोर्थ. और सॉरी ऑप्शन बचा है. एक्चुअली नहीं, एक सेकेंड, ये तो कांस्टेंट तो है नहीं, राइट? सर से ग्रेविटेशन फील्ड होना चाहिए सर. एक मिनट, टू यूनिट masses सेपरेटेड बाय, हाँ ठीक, एक सेकेंड. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो होगा नहीं, राइट? अब इसको देखते हैं कि हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है. ये एक्चुअली ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये हमें करके देखना पड़ेगा. तो फोर्स इज इक्वल टू G/mm बाय r², ठीक है. तो यूनिट masses है, यानी कि 1 into 1 and the distance is unity, so is equal to G. तो क्या है ये? Universal D gravitational option. constant. Universal gravitational constant. Right, so this is a slightly tricky question because of its language, right? It's not a very good question, but okay, it's not a very good question because it is not called that. Okay, it is not called that. Is equal to that, right? It is numerically equal to G. Using the word called makes this question a slightly incorrect question, but it is fine. Okay, the answer will be universal gravitational constant. The weight of an object at the center of the earth of radius r is. Okay, center of the earth का मतलब है यहाँ पे कि ये अर्थ है, ठीक है, इसके सेंटर पे चले गए हम. We dug a tunnel and went to the center of the earth. Okay, यहाँ पे क्या gravitational force है? Sir, r times Sir, the infinite. weight of the surface. R times the weight at the okay. सर इनफाइनाइट. हाँ, infinite क्यों होगी?
सर यहाँ पे सर रेडियस 0 हो जाएगा। हाँ, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि रेडियस इज इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू। बट एक चीज और हो गई सर कि जब डिवाइडिंग तक बाय हम यहाँ आए ना, मास इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यस सर। ओके, क्योंकि यहाँ पे अर्थ तो देखिए हम यहाँ तक डिग कर दिया मान लीजिए, तो अर्थ हमारे लिए इतनी बची, राइट? अगर हमने यहाँ तक डिग कर दिया तो इतने को ही हम अर्थ मानेंगे, क्योंकि वही उसका सरफेस है, राइट? यस सर। तो ऐसे ऐसे करते करते जब हम सेंटर पे आए तो अर्थ बची नहीं फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो मास भी 0 हो गया, रेडियस भी 0 हो गया, राइट? बट द फोर्स विल ऑल्सो बिकम 0, क्योंकि जब मास ही नहीं है तो फोर्स होगी ही नहीं। ठीक है, आप फॉर्मूले में लगाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप ये करेंगे which is equal to g 0 upon 0, and 0 upon 0 is undetermined, right? यस But the सर। question here is कि जब मास ही नहीं है तो gravitational force is the result of mass. Okay, so the answer is 0. Okay, so this was a slightly tricky question, but this is 0. An object weighs 10 Newton in air when ये immersed होना चाहिए, okay? When immersed fully in water, it weighs only 8 Newton. Okay, चलिए ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन, ओके? ये हमारे सेकंड पार्ट से, वो इस बार कोर्स में नहीं है, ये छोड़। यस सर। सर हमें कुछ समझ ना आता सर। हाँ, एक सेकंड रुकिए, ये मेरा बंद हो गया शायद किसी कारण से, वो कोई बात नहीं। हाँ, आप बोलिए। सर हमें जैसे कोई ऑब्जेक्ट है सर, उसका मून पे सर इतना केजी है, वो अर्थ पे कितना होगा सर, ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके। एक सेकंड। तो अब उस तरह के क्वेश्चंस की बिटवीन अर्थ एंड मून, राइट? यस सर। तो देखिए, ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं, जहां पे कि अर्थ के डिटेल्स दिए गए हैं, यानी कि मास ऑफ अर्थ दिया गया है एंड रेडियस ऑफ अर्थ दिया गया है, और मास ऑफ मून भी दिया गया है, रेडियस ऑफ मून भी दिया गया है, ठीक है ना? तो उसमें तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, राइट? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके ओके, वो क्योंकि बंद हो गई थी। एक सेकंड। हाँ, ओके। यस सर। तो यू कैन सी दैट। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमें अर्थ का भी मास दिया है, मून का भी, तो वो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट वाले फॉर्मूले से होगा, ठीक है? और दूसरी चीज ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं हम कि जो ग्रेविटी मून पर है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 6 टाइम्स कम है, ठीक है? कई बार हमें ये इंफॉर्मेशन दिया होता है, ठीक है ना? तो दोनों तरह से ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्म के होते हैं, तो उसमें आंसर बिल्कुल ही सिंपल है कि अगर समथिंग वेज लेट्स से 10 न्यूटन्स ऑन अर्थ, ओके, then it will weigh
10/6 न्यूटन ऑन मून, है ना। मून पे जो वेट है वो 1/6 हो जाएगा, राइट। मास कितना होगा सर? हाँ, अब करते क्या है इस तरह के, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गए। अब इसमें 2-3 तरह से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। एक कोशिश होती है वेट और मास के बीच में घुमाएंगे, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है मास इज अ कांस्टेंट, वो जगह पे डिपेंड नहीं करता है। वेट चेंजेस व्हेन जी चेंजेस, ओके। तो इसी चीज को कई तरीके से कई बार लिखकर आपको कंफ्यूज किया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन ये है, अ बॉडी वेज 10 न्यूटन ऑन अर्थ, ओके, व्हाट विल बी इट्स मास ऑन मून। बताइए कैसे करेंगे इसको। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अगर 10 सर न्यूटन, पहले मास निकाल लेंगे। तो जी को हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, ये हमने मान लिया। तो सबसे पहले हम मास निकालेंगे। मास इज इक्वल टू वेट बाय जी, विच इज 10/10 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ओके। सो मास ऑन मून 1 kg. is 1 किलोग्राम, ओके, नो चेंज। तो इस तरह से कई बार कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि अब वो क्वेश्चन पढ़ते ही कुछ बच्चे एकदम से देखेंगे और उसको 10/6 न्यूटन लिखाएंगे, जो गलत है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किलो पूछा ही नहीं, वेट का, मास का पूछ लिया। केवल इस तरह से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। गॉट इट? यस सर। Yes, Any sir. other thing that somebody has not understood in this chapter? सर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत है। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के क्वेश्चंस, देखिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम MV, इज मास इक्वल इनटू टू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। नाउ another thing to know is change in momentum by time taken for the change is equal to force, ओके। ये दो आपको चीजें अगर पता है, आप मोमेंटम के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके। तो अब जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम moving with velocity 10 meter per second was brought to rest in 25 seconds, okay. What force was applied? कैसे करेंगे ये क्वेश्चन आप। इनिशियल मोमेंटम -2 न्यूटन। okay is 5 into 10,
Okay, 10, 50 50. kilogram meter per second. Okay, now final momentum 0. is equal to 0. Okay, force is equal to change in momentum, which is 50 by time taken 25 seconds is equal to 2. सर माइनस का 2 आएगा ना Hmm? सर -2. That is okay. You can write -2 or not, because this is the force which is bringing about this change, right? So you can write it -2 or 2 because इसमें हमारे को डायरेक्शन पूछा नहीं गया, right? So लेकिन -2 लिखा तो वो भी ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है इस केस में. ओके, यस सर. हाँ. यस सर. और बताइए किसी और चीज में इस चैप्टर में डाउट है कहीं पे भी? नो सर. हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे, वो किसी ने क्वेश्चंस ट्राई किए हैं जो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करके होते हैं? यस सर. ओके, सो कैन समबडी डू दिस क्वेश्चन? Can you do this question? सर 5 सेकंड. कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? 5 सेकंड में. 5 सेकंड में आएगी? कैसे फर्स्ट किया? इक्वेशन से कर दें सर. v इक्वल टू u प्लस gt माइनस gt. v is equal to u plus at. u माइनस. यस सर. यस सर. Okay, then हमें v क्यों निकालना है इसमें? आप पहले v 0 है तो सर t निकल जाएगा. अच्छा ठीक है, तो u is 25 and a is इक्वल टू 10. minus तो 10. 10 Minus 10. A is Yes, sir, minus minus 10 10 into t. upward. Right? So t is 2.5 second. फिर क्या करेंगे? तो 2.5 सेकंड पे ये यहाँ आ गई. सर ऊपर. अब क्या करेंगे? सर वो एसेंट और डिसेंट सर बराबर होते हैं तो सर 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 5. लेकिन 2.5 पे वो वापस यहाँ आएगी, उसके बाद उसको 10 मीटर और जाना है. यस सर. सर ठीक है, तो वो भी अभी हमें टाइम निकालना है. सर. तो इसको करने के कई तरीके हैं. ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस को करने के कई तरीके होते हैं. एक तो फास्टेस्ट है, वो थोड़ा सा कठिन है, मैं एग्जाम से पहले कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा. तो सबसे ज्यादा सिंपल जो है, चाहे टाइम लगे, वो करने में ये है कि हमने टाइम तो निकाल लिया, हम ये हाइट भी निकाल लें जहां तक वो गया.
ठीक है, ये हाइट भी निकाल ली जाए, ठीक है। फिर जो सेकंड मोशन बनेगा वो हाइट प्लस 10 से गिरने का बनेगा, राइट? यस सर। ओके, तो वो जो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ सर एटी थर्ड स्क्वायर इक्वेशन वाला सर, जो कैसे होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, उससे जो है हम सेकंड लेग निकालेंगे। तो पहले हमें, अब हमारे पास टाइम है ये, तो हम चाहें तो वो निकाल सकते हैं। अब क्या निकाल सकते हैं? s निकाल सकते हैं। हम ऐसे निकाल सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर minus 2gs, right? So we know this is 0, so it's equal to 25 square minus 20s, right? So s is equal to 625 by 20. Okay, so total s in the second leg is equal to, we can simplify it a bit if we want. So 125 by 4 plus 10, 65. ओके, सो ये हमारे पास s है। अब हम क्या करेंगे? s इज इक्वल टू ut इज u इज 0 हाफ 80 स्क्वायर, राइट? सो जो t है वो है 2 इंटू s 165 by 4 by 10. Okay, so go to under root 33 by 4. Okay, which is 8 point. एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर हमने मोशन वाले चैप्टर में जो थर्ड इक्वेशन पढ़ी है उसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा है। रो सेकंड है। हाँ, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड से कोई फर्क नहीं। हाँ, ये पढ़ा है। फिर इसमें हमने -2gs क्यों लगाया है फिर? हाँ, वो इस वजह से हो गया कि ये हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर मान ली थी, राइट? और जो a है वो -10 हो गया, फिर इसलिए माइनस लिख दिया उसको। यस सर। इक्वेशन यही है जो आप बोल रहे हैं, इक्वेशन वही है, बट Okay, a sir. गॉट रिप्लेस्ड बाय -g, इसलिए ऐसा हो गया। ओके सर। Okay, it is only because it got replaced by -g. तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आता है तो आपको क्या करना है कि उसको लेग्स में डिवाइड कर लीजिए और एक एक लेग को एक एक बार में सॉल्व करते चलिए, ठीक है? वो आसान तरीका है। 33/4 अंडर रूट में। हाँ, ठीक है, वो टाइम आ गया और पहले का 2.5 सेकंड आया हुआ है, दोनों को ऐड करना, राइट? यूजुअली एग्जाम में क्या होगा, वो नंबर इस तरह से ज्यादातर देते हैं कि इस तरह की अजीब सी फिगर ना आए, राइट? क्योंकि ये तो अब आपके लिए 8 पॉइंट समथिंग का अंडर रूट है ये, राइट? विच इज गोइंग टू टेक यू टाइम टू कैलकुलेट। लॉन्ग डिवीजन से 2.8 ऐसे समथिंग है सर पूरा। कर तो सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन से थोड़ा समय लग जाएगा, 2-3 मिनट, ठीक है? और बताइए, इस चैप्टर में कोई और कहीं पे भी डाउट है? एक सेकंड,
एक क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल क्लोज द सेशन। The weight of any person on the moon is about 1/6 that on the earth. He can lift a mass of 15 kg on the earth. What will be the maximum mass which can be lifted by the same force applied by the person on the moon? सर 15 kg। सर मास सेम होता है तो 15 सर kg। कांस्टेंट रहेगा ना। हाँ, मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, हमारे पास 4 मिनट हैं फिर बंद हो जाएगा। अच्छा देखिए, द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज 1/6। ही कैन लिफ्ट अ मास ऑफ 15 kg ऑन 90 kg ठीक है सर, 90 kg। हाँ, तो अब ये आदमी कितनी फोर्स लगा सकता है? ये 15 मान लीजिए जी की वैल्यू अर्थ पे GE है, सर 10। राइट? सो ये 15 G न्यूटन फोर्स लगा सकता है, ठीक है। अब यही फोर्स जब वो मून पे जाके लगाएगा, उसकी ताकत तो कम नहीं हो जाएगी ना मून पे, ठीक है। तो वो इतनी फोर्स लगाएगा, इतनी फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? वो अगर 90, मैं आपको आंसर से समझाता हूं। दिस थिंग इज सेम, राइट? यस सर। Right? Why? Because Yes. GE is equal to 6 GM, right? So इसका मतलब मून पे वो कितना मास उठा सकता है? 90 किलोग्राम। यस सर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अर्थ मून वाले हैं, इसकी कैलकुलेशंस और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है, लेकिन वो जो उसकी भाषा है उसमें वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि मैं क्या चीज आंसर करूं, सेम मास आंसर करूं, सेम फोर्स आंसर करूं, सेम वेट आंसर करूं, ठीक है ना। तो अगर आप उस क्वेश्चन को समझ अच्छे से लेंगे तो कैलकुलेशंस में कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप बस इसको ऐसे लिखेंगे 15 GE which is same as 15 into 6 into GM is equal to 90 GM. So he can pick 90 kgs. This is the working of it. Okay. Okay. So now we are done with this. I think this chapter is not very difficult as such. एक बार आप उसको revise जरूर कर लीजिए, ठीक है? And all the best for your exam. Okay. Thank you, sir. Okay. you, sir. We will have a class day after now, right? तो Yes, कोई sir. आपके डाउट्स हो आप भेज सकते हैं मुझे, आई विल डिस्कस इट एट दैट। ओके, बाय बाय। Bye, sir. Bye sir.